Honorary Secretary Vicky Flo would like to extend a warm welcome to one and only Mr. Rajat Sharma, distinguished past chairs, and our esteemed members. Everybody, please rise for the national anthem. I would request all photographers to refrain from clicking during the national anthem. भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाए तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय May I invite our Reverend Guest Speaker, Mr. Rajat Sharma, Chairperson Ms. Shubhra Maheshwari, Past Chair Ms. Jyotsna Angara, Ms. Hina Srivastav, Ms. Monica Agarwal, Ms. Vanita Surana, to please join us for lighting of the lamp. Introduce our speaker. Mr. Rajat Sharma is the Chairman and Editor-in-Chief of India TV, India's most watched news channel. He's been bestowed with one of India's highest civilian honors, the Padma Bhushan Award, and is best known for his popular show, Aapki Adalat. Aapki Adalat is the longest running television show in India's television history. Mr. Rajat Sharma holds master's degree from the prestigious Sri Ram College of Commerce and was involved in the student politics during his stay in University of Delhi. He is also the Vice President, Strategic Affairs of Indian Broadcasting Foundation. He has led his life with the motto, credibility first. It is the result of a Herculean effort to become a self-made man who kept his feet firmly to the ground, a journalist for whom the viewer's interest has been paramount. Considered as the most powerful journalist in India, he also enjoys stardom with a huge fan following. Welcome, sir. Requesting Chairperson Shubhra Maheshwari to address the gathering. Good afternoon, everybody. A warm welcome to each one of you. मिट्टी की खुशबू, चट्टानों से ताकत, एक लहर उठी, नाम हुआ रजत शर्मा। पूरे देश को अपने जोश के समन्वय में समा लिया और हर उस शख्स को अपने कटघरे में लाके खड़ा कर लिया जिससे देश की जनता गुफ्तगू करना चाह रही थी, जिस जनता को सवाल पूछनी थी, जिस जनता के पास आवाज नहीं थी, उसकी आवाज बनी रजत शर्मा। I don't believe there is a single person in India who hasn't at least watched or in some way connected to Aapki Adalat. Our eminent speaker, Mr. Rajat Sharma's Aapki Adalat, is in a way a platform for introspection as much as it means to find out more from the beloved celebrities, from the beloved policymakers, from the beloved sports star. You name it and he's interviewed each one of them. The thought-invoking questions posed by our lawyer extraordinaire, Mr. Rajat Sharma, to the plaintiffs are just as relevant as if we were to ask ourselves the same.
It's so easy to caught up in the day-to-day aspects of life and forget to pause, self-reflect, and look at the bigger picture. Slowing down and taking time to think about your life is extremely helpful in creating a better sense of you, who you are, who you want to be, and how you will get there. And hence, this event today. रजत शर्मा जी ने हर इंसान से इतना कुछ देश की जनता को दिलवाया है, ना दहाड़ और ना खूंखार तरीके से, सिर्फ अपनी मंद मुस्कुराहट से हर बात को टू द पॉइंट, इनफैक्ट बियॉन्ड द पॉइंट ऑल्सो. India TV, India's biggest and the most renowned Hindi news channel, founded by Shri Rajat Sharma ji and his extremely dedicated and talented wife Ritu Dhawan ji, is the most popular Hindi channel known for its accurate and precise media coverage. We are very delighted to have you here, Rajat ji, to share your experiences and to give us a peek behind the other side of the wheel which we do not know. Before I delve in further, I would like to highlight a few of our activities at Flow Hyderabad. Flow Hyderabad chapter has recently launched Flow Business Awards, awards for the women, by the women, of the women entrepreneurs, the women who have a zeal to do something. There are 11 categories. There are loads of applications we've already received. If you haven't applied so far, or if you know somebody who is deserving of applying, please recommend, ask them to apply. These awards is an idea to incentivize women entrepreneurs from the state of Telangana, and the grand gala on Jan 11 will honor the women who are making inroads into the world of business. The applications will be thoroughly vetted by independent auditor, Primus partners, and the final results would be decided by an external jury, requesting all of you to share the word around. I'm also delighted. Can we have the AV for the awards? Sir, a small presentation. I'm also delighted to share that Flow Hyderabad chapter, with the support of the Empowerment Committee headed by Ms. Priya Gazdar, has tied up with Narsi Munji Institute of Management Studies and entered a knowledge-sharing MOU with IKP Knowledge Park. These collaborations reinforce academia-industry partnerships and are aimed at promoting and supporting women entrepreneurship at all levels through bespoke speaker sessions, workshops, boot camps, and incubation cohorts. परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं. वो लोग मुस्कुराते हुए खामोश रहते हैं अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं. I now present to all of you a small AV on the man himself, Mr. Rajat Sharma. The most watched show on news television in India. Aap Ki Adalat, People's Court of India, 30 years, non-stop. And the man who prosecutes with a smile. मैं रजत
रजत जी को बहुत सालों से जानता हूँ। ये इंटरव्यू करने का एक अपना तरीका है उनका। और 21 साल तक एक ही प्रकार की चीज सस्टेन करना ये सरल काम नहीं है, और उन्होंने इसे किया। This program has manifested the strength of our democracy. And please do not change your role to be the public prosecutor of the people of India. Thank you, ladies and gentlemen. Rajat Sharma has grilled more than 1,000 powerful personalities, political leaders, film stars, celebrities. Yeah, this is the power of education. This is the power of dedication. This is the power of लगन मेहनत ये होता है. So very proud of this. मेरा जिंदगी का सबसे पहला बड़ा टीवी का इंटरव्यू एक्चुअली आपकी अदालत में हुआ था, जिसकी वजह से मुझे लगता है जिस मुकाम पर मैं पहुंचा हूं उसमें बहुत मदद हुई। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू कहना चाहता हूं कि आपने मुझे इतना बड़ा स्टार बनाया। He made them laugh, cry, share secrets. Narendra Modi, Pranab Mukherjee, Arun Jaitley, Manmohan Singh, Atal Bihari Vajpayee, Salman Khan, Shah Rukh Khan, Amir Khan, Virat Kohli, Imran Khan, Kapil Dev, Vijay Malia, Rahul Bajaj. Icons, stars, and controversial people. List of his guests is never ending. Millions watch him on India TV and YouTube world over. आपकी अदालत मेरे सवालों से नहीं बना, आपकी अदालत आपके जवाबों से बना। Rajat Sharma, India's most watched TV star. And ladies, I proudly present to Flow Hyderabad, first time ever, Mr. Rajat Sharma with a big round of applause. Let's welcome. Good afternoon, Rajat ji. पाँव काँप रहे हैं मेरे और काफी नर्वस हूँ। जिसने पूरे देश का इंटरव्यू ले लिया, अगर मुझे उनके साथ बात करने को मिले तो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम। देखिए, आप कुछ भी कहें, सबसे पहले आपको जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। आप सोचती हैं कि हमें खबर नहीं रहेगी, हम सब खबर रखते हैं। तो बहुत बहुत मुबारक आपको, और भगवान आपको लंबी उम्र दे, आपको सेहत दे, और आप सफलता की और बुलंदियों पर पहुंचे। ये मेरी शुभकामना आपके लिए। थैंक यू सो मच रजत जी, दैट्स सो नाइस ऑफ यू टू रिमेंबर इट। हमारी काउंसिल पूछ रही थी, हमारी कमेटी की क्या करने में, नाम भी नहीं लेना है, एकदम इवेंट करो शांति से। दैट्स वेरी स्वीट ऑफ यू। तो रजत जी, बिफोर वी बिगिन द जर्नी, वुड यू लाइक टू स्पीक टू आवर ऑडियंस? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे यहाँ बुलाया और इतनी बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ आए। जो जिंदगी आपको टीवी पर दिखाई देती है, मेरी लाइफ असल में ऐसी सेक्सी लाइफ नहीं है। ये जो पर्सनैलिटी टीवी पर दिखाई देती है, मैं तो सोचता हूँ कि वो कोई और है और मैं उसके लिए काम करता हूँ, लेकिन अपना काम ईमानदारी से करता हूँ। और आप लोगों ने जो प्यार दिया है, इस देश के लोगों ने जितना मान सम्मान दिया है, कभी कभी लगता है कि मैं उसके काबिल भी नहीं हूँ, लेकिन जो जिम्मेदारी दी है उसको कोशिश करता हूँ कि जितनी मेहनत से, जितनी ताकत से, जितनी ईमानदारी से निभा पाए। मैं ये सीक्रेट आपके साथ शेयर कर सकता हूँ कि आप सब लोग कहते हैं कि बड़े कॉन्फिडेंस से सवाल पूछते हैं, बड़े मुस्कुरा के सवाल पूछते हैं। आपकी अदालत की जब रिकॉर्डिंग होने वाली होती है, उसके पहले मैं पूरी तरह नर्वस होता हूँ।
एक दिन पहले जब मैं तैयारी कर रहा होता हूँ तो मैं सब दरवाजे बंद कमरों में बैठ के पढ़ रहा होता हूँ, तैयारी कर रहा होता हूँ। और जिस दिन सुबह रिकॉर्डिंग है, मैं सुबह जब 4-5 बजे उठता हूँ, एक वकील की तरह अपना केस तैयार करना शुरू करता हूँ। और फिर मेरी वाइफ बिल्कुल जो इस प्रोग्राम के डायरेक्टर हैं, उनको क्या तो आज मेरे से हो नहीं पाएगा, क्या हम इसको कल नहीं कर सकते। तो उनको भी अब आदत पड़ गई ऐसी बातें सुनने की। फिर जब स्टूडियो में जाता हूँ तो मुझे लगता है कि आज मेरी तैयारी पूरी नहीं है, आज शायद दुनिया के सामने मैं एक्सपोज ही हो जाऊंगा, तो मुझे कुछ नहीं आता। फिर सोचता हूँ आज ये छत गिर जाए, आज ये लाइट फेल हो जाए, बस आज रिकॉर्डिंग ना हो, कल हो जाए। और रिकॉर्डिंग शुरू होने के कुछ सेकंड पहले तक पसीना आ रहा होता है, पाँव कांप रहे होते हैं। और फिर जब उनकी आवाज मेरे कान में पड़ती है, 10 सेकंड्स टू गो, 9 टू गो, फिर उनकी आवाज आती है, लाइट्स, कैमरा, एक्शन, उसके बाद क्या होता है वो मुझे पता ही नहीं चलता। देन इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड। फिर वो प्रोग्राम जब शुरू होता है, तब खत्म होता है, तब मुझे वापस होश आता है कि हाँ कुछ हो गया। तो ये एक राज है जो मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहता था। और आपको आज पूरा मौका है, आप मुझे हैदराबाद की फ्लो की अदालत में बिठा लीजिए, जो सवाल आपको पूछने हैं आप पूछिए, प्लीज फील फ्री। मेरी जिंदगी में कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जिसको छुपाने की जरूरत है, अगर कुछ ऐसा होगा भी तो आज बता सकते। रजत जी, पहला आरोप तो ये है कि आपके ऑफिस से मैंने कहा था हमें भी एक कटघरा लगा लेने दीजिए, तो उन्होंने हमें अलाउ ही नहीं किया। देखिए, ये जिम्मेदारी जनता ने मुझे सौंपी है, लोगों को कटघरे बिठाने की। मुझे नहीं कटघरे में बैठना है। एक बार हुआ था जब आपकी अदालत के 21 साल पूरे हुए थे, तब सलमान, आमिर और शाहरुख, इन तीनों ने प्लान किया था, मुझे कटघरे में खड़ा किया था, कुछ सवाल पूछे थे, लेकिन सवाल पूछना उनको काफी महंगा पड़ा। तो ये बात वाकई है कि जब इनके यहाँ से हाँ आ गया कि चलिए हम आपका इवेंट कर रहे हैं, तो पहले खुश हुई, फिर डर गई कि अब करूँगी कैसे। एंड देन आई वेंट इनटू रिसर्च। सो यू आर माय आइडल। तो रजत जी रिसर्च करते हैं अपने प्लेंटिफ पे, तो मैं भी कर लेती हूँ। अब वो रिसर्च में कुछ भी नहीं है, विकिपीडिया पे एक पेज है, और रजत जी का आज तक कहीं कोई इंटरव्यू ही नहीं है। और वो जो आपकी अदालत में आपके वो 21 ईयर सेलिब्रेशन में जो आपको कटघरे में बैठाया था, वो एक एक एडवोकेट जो बन के आए थे, उनकी जो हालत हुई थी, तो मैंने कहा नहीं, वो आपका ऑफिस ठीक ही बोल रहा है कि हमें ये नहीं करना चाहिए। लेकिन रजत जी, ये बात कैसे है कि आपको कोई इंटरव्यू नहीं मिला मुझे देखने को? असल में इंटरव्यू मैं देता नहीं, इंटरव्यू लेता हूँ। मैं टेंशन लेता नहीं, टेंशन देता हूँ। मैं टेंशन में हूँ, मैं काफी टेंशन में हूँ। तो रजत जी, हम स्टार्ट करते हैं। वैसे तो हम कैसे स्टार्ट करें, मतलब आप हैं, पर स्टिल अब मौका है तो हम स्टार्ट कर लेंगे। तो मैं आपको पूरा मौका देता हूँ। ये फ्लो हैदराबाद की अदालत है और आपको पूरा मौका है, आप मुझसे कुछ भी सवाल पूछ सकती हैं, कड़वे सवाल, मीठे सवाल, तीखे सवाल, जो भी सवाल पूछना चाहें, और मैं कोशिश करूंगा पूरी ईमानदारी से उनका जवाब। सो स्वीट, लाई हूँ मैं, पिटारा भर के लाई हूँ। तो सफल होने के 3 नियम होते हैं: खुद से वादा, मेहनत ज्यादा और मजबूत इरादा। तो रजत जी, आप अपने अर्ली चाइल्डहुड, अपने लाइफ के बारे में बताइए, एजुकेशन की ये मजबूत इरादे कहाँ से उत्पन्न हुए, कैसे आपकी लाइफ रही थी स्टार्टिंग ईयर्स में? देखिए, मेरी शुरू की जिंदगी है वो बिल्कुल आज की जिंदगी से अलग है। पुरानी दिल्ली में एक सब्जी मंडी इलाका है, उसमें गंदी सी सकरी सी गली एक 3 मंजिला इमारत की तरफ जाती थी। उस इमारत में बाकी लोग रहते थे, लेकिन हमारे पास में रहने के लिए छत के ऊपर एक 10 बाई 10 का कमरा था। उस 10 बाई 10 के कमरे में हम 7 भाई, एक बहन, एक बीमार माँ और पिताजी, 10 लोग रहते थे। उस कमरे में इतनी जगह नहीं थी कि हम लोग फर्श पे एक साथ सो पाए। तो जैसे कपड़े की दुकान में थान लगाने के लिए तख्ते लगा देते हैं, ऐसे स्टैक्स लगाए हुए थे, उसके ऊपर एक एक करके सोते थे। कभी कभी नींद में ऊपर से गिर भी जाते थे। जब बारिश होती थी तो छत टपकती थी। मुझे वो भी दिन याद है कि
छोटे छोटे बर्तन बाल्टियां लेके हम उस टपक की छत के नीचे रखते थे। खाने के लिए कभी होता था, कभी नहीं होता था। घर में से ज्यादातर लोगों के पास काम नहीं था। माँ बीमार थी, पिताजी का सारा बिजनेस बर्बाद हो गया था। तो मुझे याद है उस जमाने में अमेरिका से गरीब लोगों के लिए मिल्क पाउडर आता था, तो लाइन में खड़े होकर वो डब्बे ले आते थे। कई कई दिन वो खा करके काम चलता था। घर में बिजली नहीं थी, तो मैं रात में पास में एक रेलवे स्टेशन था, वहां पढ़ने के लिए जाता था, क्योंकि रेलवे स्टेशन पे रात भर बिजली होती थी। और पानी नहीं था, तो नहाने के लिए मुझे याद है गली के नुक्कड़ पे एक नल था, कॉर्पोरेशन का। उस नल में हम सारे भाई जाके नहा लेते थे, और 2 बाल्टी पानी, एक माँ के लिए, एक बहन के लिए, वो लेके आ जाते थे। और वो उसी कमरे में एक साड़ी के कोने पे टांग करके नहा लेती थी। इस जिंदगी को सहा, इस जिंदगी को महसूस किया, लेकिन इस गरीबी में, इस तकलीफ में, जहां अच्छा पढ़ने का स्कूल नहीं था, जहां यूनिफॉर्म नहीं थी, कपड़े नहीं थे, उस सब में हमारे जो बाबूजी थे, जो पिताजी थे, वो बड़ी हिम्मत थे। एक दिन मैंने उन्हें कहा कि बड़ी तकलीफ है, इतनी गरीबी, ना अच्छा स्कूल, ना कपड़े, ना खाने के लिए। तो उन्होंने कहा यहाँ बैठो, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर अच्छा स्कूल होता, अच्छे कपड़े होते, अच्छा खाना होता, तो कोई भी खुश रह लेता। चैलेंज ये है कि गरीबी में, तकलीफ में, परेशानी में खुश रह के दिखाओ, ये चुनौती। और उनकी ऐसी बातों ने ये ताकत दी, और जीवन भर उनसे सीखते रहे। और जब जब मुसीबत होती थी, जब जब तकलीफ होती थी, हम जब उनसे कहते थे, कोई ऐसी बात कह देते थे, और उससे हमें ताकत मिलती थी, उससे हमें जीने की हिम्मत मिलती थी। बहुत ही इंस्पिरेशनल रहा रजत जी बचपन का सफर, और उन तकलीफों में भी आप मुस्कुराते रहे, पिताजी ने सिखाया। वेरी नाइस। रजत जी, इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं, हौसलों की जरूरत होती है। आपकी अदालत ने इतिहास लिख चुका है, और ये इकलौता एक ऐसा एपिसोड है जो इतिहास भी है, करंट भी है, फ्यूचर भी बनने वाला है। हाउ डिड आपकी अदालत स्टार्ट? वो थॉट प्रोसेस कहाँ से आया? इसके 2 हिस्से। एक हिस्सा तो मेरे बचपन में, जब मैं कोई 8-9 साल का रहा होऊंगा, तो चूंकि हमारे घर में तो बिजली नहीं थी, तो रेडियो नहीं था, तो टीवी तो सवाल ही नहीं पैदा होता था। पड़ोस के एक घर में हम लोग टीवी देखते जाया करते थे। एक जैन साहब थे, बहुत बड़ा उनका मकान था, जिसको सब कोठी कहते थे, कोठी में जा रहे हैं, और उनके घर में टीवी होता था। तो उस जमाने में, आप लोगों को शायद नहीं अंदाजा होगा, टीवी पर जो फिल्म आती थी, आधी फिल्म शनिवार को दिखाते थे और बची फिल्म संडे को दिखाते थे। तो आधी फिल्म देखी शनिवार को, संडे को जब फिल्म देखने गए, तो उन्होंने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। मैं घर लौटा तो आंख में आंसू थे। बाबूजी ने पूछा क्या हुआ, तो मैंने कहा वो शहीद भगत सिंह की फिल्म थी, आधी देखी थी, और वो आज उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया, देख नहीं पाए। तो उन्होंने कहा कि तुम किसी दूसरे के घर में, किसी तीसरे को टीवी पर देखने जाते हो, दम है तो कुछ ऐसा करो कि तुम टीवी पर आओ, लोग तुम्हें देखें। मुझे लगता है उस पल कहीं मेरी टीवी पर आने की, उस पल कहीं आपकी अदालत की नींव पड़ी, और वो मेरे जहन में कहीं रह। आपकी अदालत की शुरुआत कोई बहुत प्लानिंग से, तैयारी से नहीं हुई थी। इट आई वुड से वाज एन एक्सीडेंट। मुझे आज भी वो दिन याद है, ये 1992 की बात है, 30 साल हो गए। दिल्ली से फ्लाइट में मैं बॉम्बे आ रहा था। बॉम्बे में मैं एक न्यूज़पेपर का एडिटर था। उस फ्लाइट में सुभाष चंद्रा, ये जो जी टीवी के ओनर थे, अब तो
उनके साथ से चला गया वो, जी टीवी वाले और रमेश चौहान पार्ले वाले, ये 2 लोग थे। इन दोनों को मैं जानता था अच्छी तरह से। और गुलशन ग्रोवर जो फिल्म एक्टर हैं, वो मेरे कॉलेज में पढ़ते थे मेरे साथ में। तो सुभाष चंद्र ऐसे फ्रेंच कट बियर्ड रखते थे, तो गुलशन ग्रोवर मेरे साथ बैठा था और गुलशन ने मुझे कहा, यार तू इसको ये जानता है, ये दाढ़ी को? तो मैंने पूछा क्या हुआ? उसने कहा कि इसने एक चैनल शुरू किया है जी टीवी। तो मैंने कहा मैं जानता हूँ, उसमें ऐसे प्रोग्राम आते हैं, जंगली तूफान, टायर पंचर, सांप सीढ़ी। तो गुलशन ने कहा कि अगर इनके चैनल पर मेरा इंटरव्यू आ जाए तो मुझे फायदा होगा, मेरा प्राइस बढ़ेगा। तो अखबार का एडिटर था, बड़ी एरोगेंस थी। मैंने कहा अरे मैं अभी सालों क्या था, उसमें क्या बात है। तो मैं उनके पास गया, आयल में खड़े थे हम लोग वहाँ। मैंने उनसे कहा कि हमारा दोस्त है गुलशन, इसका इंटरव्यू आप अपने चैनल में करिए। तो सुभाष जी ने कहा कि भाई मैं तो बिजनेसमैन आदमी हूँ, मैं क्या इंटरव्यू करूंगा और किसको करे पता नहीं, आप इसका इंटरव्यू कर दो, हम दिखा देंगे। तो मैंने उनसे कहना शुरू किया, मैंने कहा देखिए साहब, 2 लोग बैठ के आपस में बात करें, कौन देखेगा? तो उन्होंने कहा फिर? मैंने कहा पब्लिक को बुलाइए, उसके सामने बड़े बड़े लोगों को कटघरे में बिठाइए, उनको जूते मारिए और पब्लिक तालियां बजाएगी, उनसे सवाल पूछिए, उनको अकाउंटेबल बनाइए, तब जाके कोई प्रोग्राम बनेगा जिसको लोग देखेंगे। और आप सोचिए मैंने 10-12 मिनट उनको एक लेक्चर दिया होगा कि प्रोग्राम कैसे होना चाहिए। देयर वाज नो थॉट, मैंने कभी सोचा नहीं, ये कोई ऊपर की शक्ति थी जिसने कहलवाया। उसके बाद हम लोग वापस आ गए, मैं इस बात को भूल गया। 3-4 दिन बाद सुभाष जी ने मुझे फोन किया कि मैं आपसे मिलने आना चाहता हूँ। तो मैंने कहा बताइए, मैं आ जाता हूँ। नहीं मैं आऊँगा, मुझे काम है। और उन्होंने कहा कि वो जो प्रोग्राम आपने कहा था ना अदालत का, तो वो मैंने अपने क्रिएटिव लोगों से डिस्कस किया। ऐसा कौन सा प्रोग्राम? उन्होंने कहा वो आपने, मैंने कहा मैंने तो आपसे कोई प्रोग्राम की बात नहीं की। तो उन्होंने कहा वो जो आपने प्लेन में मुझे कहा था। अरे मैंने कहा सुभाष जी क्या बात करें, मैं तो ऐसे ही पता नहीं क्या क्या बोल दिया, मुझे तो याद भी नहीं है, ऐसे ही मजाक में बोला था। कहने नहीं साहब, मैंने वो अपने क्रिएटिव लोगों से डिस्कस किया, उन्होंने कहा ये बड़ा अच्छा शो हो सकता है। तो आई टोल्ड हिम छोड़िए इसको, आप मेरे बस का तो, मैं तो कभी टीवी देखता भी नहीं हूँ, तो प्रोग्राम करने का सवाल नहीं पैदा होता। लेकिन कुछ दिन बाद उन्होंने फिर से परसू किया, एंड आई रियली हेड्स ऑफ टू हिज अंडरस्टैंडिंग। उन्होंने फिर से मुझे कहा, तीसरी बार उन्होंने कहा कि मैं अपने लोगों को आपके भेजना चाहता हूं। मैंने कहा मैं आपके पास आता हूं। और मैं उनके पास गया, मैंने कहा सुभाष जी मैं आपसे काम पकड़ता हूं, माफी मांगता हूं, मैंने ऐसी हवाबाजी की थी, ये कोई प्रोग्राम नहीं हो सकता ऐसे। फिर उन्होंने 2 अपने क्रिएटिव डायरेक्टर्स को मेरे पास भेजा। उन दोनों ने, करुणा समतानी और कमलेश पांडे को मैं जानता था कि सुभाष जी की फिल्मों के डायलॉग राइटर थे। तो इन दोनों ने मुझे कन्विंस किया कि आप कोशिश तो करिए, एक बार आप रिकॉर्ड करिए, अच्छा नहीं लगेगा तो फिर हम उस प्रोग्राम को स्क्रैप कर देंगे, नहीं करेंगे, खर्चा हमारा होगा, एक बार ट्राई तो करिए, हमें भरोसा है आप कर सकते हैं। दिस इज हाउ फर्स्ट रिकॉर्डिंग ऑफ आपकी अदालत टुक प्लेस ऑन 12 फरवरी 1993 और पहला टेलीकास्ट था 13 मार्च 1993 को। और पहले हमारे गेस्ट थे लालू यादव, जो उस समय बिहार के मुख्यमंत्री। Very interesting. So let's talk about what puts you apart from the other people, the other interviewers, the other journalists. There is a very unique style of your talking, your walking, your eyes. वो आपकी मंद मुस्कुराहट से आपको धीरे से ऐसा बम फेंकते हैं सामने वाला, उसको पहले समझ ही नहीं आता कि क्या पूछ गए, और बातों ही बातों में सब कुछ आप भुलवा भी लेते हैं. It's a very, very unique characteristic. So what gives you the confidence to directly ask these provocative questions to your celeb guests? देखिए ये आपकी काइंडनेस है कि आप कह रहे हैं कि इतने प्रोवोकेटिव और इतनी तैयारी और ऐसे पूछ लेते हैं। ऐसा आपको मैं बताता हूँ, जब पहला रिकॉर्डिंग शुरू हुई जिस दिन लालू जी की, तो सुबह सुबह लालू जी ने कहा कि भाई उस दिन उस जमाने में क्या था कि सेट लगाना बहुत महंगा होता था। सोचा था एक बार सेट लगाएंगे तो 4 प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग करेंगे। तो पहली रिकॉर्डिंग होनी थी खुशवंत सिंह जी, इलस्ट्रेटेड वीकली के एडिटर थे, बहुत नामी थे, बहुत लर्नेड थे और मुझे बहुत प्यार करते थे। दूसरी शाम को हमें लालू जी का करना था, नेक्स्ट डे हमें करना था TN सेशन, और
फोर्थ था केपीएस गिल, वो पंजाब के डीजीपी पुलिस थे। ये सारे वो लोग थे जो मेरे दोस्त थे, तो अपने दोस्तों को पकड़ पकड़ के लाया था कि भैया आपके ऊपर मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा। लालू जी ने सुबह मुझे फोन किया कि भाई साहब हमें तो शाम को पटने जाना है, तो हम आ नहीं सकेंगे। मैंने कहा लालू जी क्या कर रहे हैं, हमारे यहाँ सेट लगा है, खर्चा हुआ है, ऑडियंस आएगी। तो उनको ये सब बात समझ में नहीं आई, तो बोले हम अभी आ जाते हैं। मैंने अभी कैसे कर सकते हैं, मैंने कहा अभी तो हमारे कैमरामैन नहीं आए होंगे, अभी लाइट ही नहीं होगी। अरे 2 फोटोग्राफर हमारे साथ है, बहुत अच्छा फोटो खींचता है। मैं उनको क्या पाता, बात पूरी कहता, अब से पहले फोन रख दिया, मोबाइल फोन नहीं था, बिहार भवन में था। मैंने दोबारा फोन किया, कहा बिहार भवन से वो नोएडा में आपके स्टूडियो के लिए निकल गए। मैं जल्दी जल्दी तैयार होकर पहुंचा। आप कह रही तैयारी और सवाल कुछ होश ही नहीं था क्या हो क्या रहा है। 1 घंटे का वक्त रखा था जो मुझे रिहर्सल करनी थी, तो रिहर्सल का वक्त गया। लालू जी पहुंच गए, कोई कैमरामैन वहीं पर अखबार बिछा के सो रहा था, लाइटिंग हो रही थी, कटघरे के ऊपर अभी कील ठोकी जा रही थी, थोड़ा पेट हो रहा था। तो और जो ऑडियंस थी खुशवंत सिंह जी के लिए थी। उस ऑडियंस में मैंने सेंट स्टीफन्स कॉलेज के स्टूडेंट्स, मिरांडा हाउस की स्टूडेंट, इनको बुलाया हुआ था। वो टाई पहन के स्कर्ट्स वाले बच्चे आए हुए थे। और एक इंग्लिश की राइटर थी, उनको खुशवंत जी का जज बनाया था। इनके लालू जी की रिकॉर्डिंग तो दोपहर को होनी थी 4 बजे, और उसके लिए कुलदीप नायर बहुत बड़े जर्नलिस्ट, उनको जज बनाया था। अब लालू जी का शुरू करिए। तो मैंने कहा अब थोड़ी 5 मिनट दीजिए, तो आपको मैं दिखाता हूँ स्टूडियो क्या होता है। फिर छत पे दिखाया ये हो रहा है, तो बोले हमें टहला रहे क्या। तो मैंने कहा लालू जी 5-10 मिनट लगेंगे। अब उन्होंने क्या किया, जब वो छत पे गए तो उस समय नोएडा डेवलप हो रहा था, तो बारह में एक बिल्डिंग हुई पर मजदूर काम कर रहे थे। वो मजदूर बिहार के थे। उन्होंने अपने चीफ मिनिस्टर को देखा, वो तो बिल्कुल एकदम मोहित हो गए और वहां से बोलने लगे लालू जी लालू। तो बोले आवा आवा आवा। तो मिट्टी में सने मजदूर जिन्होंने सिर्फ अंडरवेयर पहने हुए थे, इतने लंबे वाले, कहा भाई साहब इनको बिठाइए ऑडियंस में। तो बिठाया तो आधी ऑडियंस में सूट पहने हुए लड़के थे और आधी ऑडियंस में ये थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कैसे होगा। तो मैंने नमिता गोखले जो राइटर थी, उनसे मैंने कहा नमिता जी मे आई रिक्वेस्ट यू टू बी ए जज फॉर इट। शी सेड नो नो आई डोंट लाइक इट, आई हैव कम फ्रॉम खुशवंत जी। तो मैंने कहा देखिए अभी मजबूरी है, नैयर साहब को भी किसने फोन किया, वो पता नहीं पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे, और ये फिर चले जाएंगे, मेरे लिए बड़ी मुश्किल है। तो न ऑडियंस काम की न जज जबरदस्ती का शुरू किया। तो मैंने पहला कुछ बोला, तो एक दौड़ते हुए आए आदमी, अरे भाई साहब नारियल तो नहीं फोड़े हैं। तो लालू जी से कोई आया हुआ था, उसने वो नारियल लालू जी को दे दिया। लालू जी ने वो नारियल सेंटर में फोड़ दिया, तो सारे में वो नारियल के टुकड़े और पानी फैल गया। तो डायरेक्टर ने कहा आप शूटिंग हो नहीं सकती सब जब तक ये पानी नहीं, तो पैचेस आएंगे ऊपर कैमरा में। तो फिर हेयर ड्रायर लेके उनको सुखाया गया। फिर तीसरी बार शुरू हुआ, तो मैं पहला सवाल पूछने लगा था कि दरवाजा खुला, कुलदीप नैयर साहब आ गए। ओ वही मुझे क्या करना है, मैं जज हूं। तो मैंने नमिता जी से कहा कि नमिता जी कुलदीप नैयर साहब आ गए, प्रोसिक्यूटर यू प्लीज टेक योर प्लेस। वो वाकई में अपने आप को जज समझने लगी। तो मैंने उनसे कहा देखिए भगवान ने आइडिया दिया उस समय। मैंने उनको कहा कि नमिता जी आपको खुशवंत जी बुला रहे हैं। खुशवंत जी आ चुके थे, और अच्छी बात है खुशवंत जी ने कहा कि भाई मैं तेरी प्रॉब्लम समझता हूँ, मैं ऊपर छत पे चारपाई पे सो रहा हूँ, जब तेरा काम हो मुझे बुला लेना। तो नमिता जी के लिए खुशवंत सिंह बहुत बड़े फिगर थे, बहुत बड़े राइटर थे, तो शी रैन टू मीट हिम। फिर हमने नैयर साहब को वहां बिठाया, फिर प्रोग्राम शुरू किया। प्रोग्राम अच्छा हुआ और उसमें ज्यादा कंट्रीब्यूशन लालू जी का था। ही वॉज फुल ऑफ फन। उनका जो बोलने का अंदाज था और जो जिस तरह से उन्होंने जवाब दिए, उसने प्रोग्राम को बहुत बनाया। अब आपको बता तो क्लाइमैक्स, रिकॉर्डिंग खत्म हो गई, सबने अरे साहब कमाल कर दिया आपने, तो क्या सवाल पूछे और क्या लाल ने जवाब दिया, और ये वो लालू जी सब चले गए। तो एक छोटी सी कमी रह गई। मैंने कहा क्या वो जो उसके डायरेक्टर थे गुलशन,
क्या कमी रह गई? कोई नहीं, वैसे अभी कर लेंगे, डोंट वरी। मैंने कहा बताइए हुआ क्या? तूने कहा साहब वो ना आपका ऑडियो नहीं रिकॉर्ड हुआ। तो मैंने कहा यार आप लोग पागल हो, कह रहे हो अच्छा प्रोग्राम हो गया, एंकर का ऑडियो नहीं है। तो सारा का सारा फिर पैच वर्क किया। वो जो फीबल सी आवाज थी उसको सुनते थे, मुझे बताते थे आपने ये पूछा, मैं उसको रिपीट करता था, वो पूरा रिकॉर्ड करके फिर बाद में उसको पैच किया। इस तरह से आपकी अदालत का पहला प्रोग्राम हुआ। आप कह लीजिए बड़ा भारी प्रोग्राम हो गया, कुछ मुश्किल था, बहुत मुश्किल। बिफोर वी प्रोसीड, हमारा ऑडियो वीडियो सब रिकॉर्ड हो रहा है क्योंकि सेकंड टाइम मैं नहीं कर पाऊंगी और रजत जी को वापस तो बिल्कुल भी बुलाना मुश्किल है। ही इज अ वेरी बिजी मैन। सर, इंडिया टीवी एनिवर्सरी वाज अ वंडरफुल सेलिब्रेशन। In fact, I remember when I was a small child और आपका जब आपकी अदालत आता था, शायद हफ्ते में एक बार होता था, तो वो घर पे उस वक्त कर्फ्यू होता था, पापा ऐसे बुला लेते थे कि सब आके बैठ जाओ कर लो। तो इंडिया टीवी की जब एनिवर्सरी हुई, एंड इन दोस टाइम्स you are the only person who could bring Shah Rukh, Aamir and Salman Khan together. How did this happen? उसके बाद भी कभी इकट्ठे नहीं हुए। ये आप बात करें जब आपकी अदालतें 21 साल 21 ईयर्स हमने सेलिब्रेट किए। उस समय मैंने ये सोचा कि जितने भी लोग आपकी अदालत में आ चुके हैं उन सबको एक साथ बुलाया जाए। तो उसमें मोदी जी भी थे, उसमें प्रणब मुखर्जी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी थे। अब वो प्रोटोकॉल था कि साहब प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट एक साथ एक जगह पर नहीं हो सकते। तो मैंने कहा तो इस प्रोग्राम में तो आए ही थे ना, इसको कोई ऑप्शन नहीं है। खैर कोशिश करके पूरे कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, कांग्रेस की भी लीडर्स थे, फिल्म स्टार भी थे, सब लोग थे। आई मस्ट से, एंड ये आज मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ क्योंकि आपने आमिर और शाहरुख और सलमान की बात पूछी है। इन तीनों लोगों के बारे में ये नॉर्मल इंप्रेशन है कि बहुत नखरे वाले हैं, इनको बुलाने के लिए आपको बहुत खर्चा करना पड़ता है, आपको आप प्लेन भेजिए। आप कोशिश कर चुकी हैं? सर, आप पूरी तैयारी के साथ आए, आपको पता है मैंने कहाँ कोशिश करी है। उनके लिए बड़े प्रेसिडेंशियल स्वीट बुक कराने पड़ते हैं, उनके साथ 20-25 लोग आते हैं। तो हमें भी यही इंप्रेशन था, और फिर ये टाइम पर नहीं आते। मैंने तीनों से कहा, अब सलमान और शाहरुख मुंबई से आए और आमिर एक्चुअली एलए में थे। उनके बेटे आजाद का बर्थडे था उसी दिन जिस दिन हमारा ये शो था। और जब मैंने आमिर को कहा कि आमिर इसमें आप नहीं आओगे तो चलेगा नहीं, कैसे होगा, क्योंकि सब लोग आ रहे हैं। तो उसने कहा सर मैं आपके लिए आऊंगा। मैं आजाद से को कन्विंस कर दिया, इसका बर्थडे हम 2-4 दिन बाद मना लेंगे। और ही वॉज सो काइंड, वो एलए से फ्लाइट लेके आए उसके लिए। सलमान शाहरुख दोनों से मैंने कहा कि हम आपके लिए प्लेन अरेंज कर देते हैं, हम आपके लिए। तो उन्होंने कहा सर आप क्या बात। बोथ ऑफ देम टुक देयर ओन चार्टर्ड फ्लाइट्स, उनकी अपनी टीम। होटल्स में भी उन्होंने हमें कमरे बुक नहीं करने दिए। दे स्टेड इन देयर एट देयर ओन एक्सपेंस। ये तो मैं छोटी बात मानता हूँ। सबसे बड़ी बात है जिसने आई रियली प्राउड ऑफ दिस, जो सलमान की टीम उनके साथ काम करती है, उन्होंने कहा कि पहली बार जिंदगी में सलमान टाइम पर तैयार हो गए। और पहली बार सलमान ने कहा कि आई वॉन्ट टू बी फर्स्ट खान टू रीच देयर। ही सेड मैं पहला खान होना चाहता हूं आपके अदालत के फंक्शन में जो पंडित जी को गले लगाए। पंडित जी मुझे कहते हैं जो पंडित जी को गले लगाएंगे। और एक्चुअली और उनकी टीम के लोगों को भरोसा ही नहीं था कि सलमान सबसे पहले तैयार होके बंद गला पहन के, और ये भी कहा कि जो नीचे जो उन्होंने बनियान पहनी हुई थी वो थोड़ी खराब थी, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अंदर से दिखेगी नहीं, यही पहन लेते। आप सलमान और यही बात शाहरुख और यही बात आमिर, तीनों आए और तीनों ने बहुत टाइम स्पेंड किया। मुझे कटघरे में खड़ा किया, सवाल पूछे और उन्होंने दे क्रिएटेड फन। अब आपको एक और राज की बात बताता हूं। आमिर ने मुझे कहा कि मैं चूंकि बाहर से आया हूं, आई एम नॉट रियली ड्रेस्ड फॉर द ओकेजन, तो मैं सर स्टेज पर नहीं आऊंगा। मुझे जो भी कहना होगा मैं नीचे वहां ऑडियंस में जहां बैठे बाकी सब लोग
उनके साथ बैठा रहूंगा, आप मुझसे जो पूछेंगे जो कहेंगे मैं वहां से कर दूंगा. एंड ही वाज एक्चुअली, एवरीवन वाज इन आइदर वन गला और ब्लैक सूट, और बट वो एक कैजुअल पहने हुए थे क्योंकि वो पहले से आए इसी चीज के लिए. सलमान और शाहरुख जब स्टेज पर थे तो सलमान ने वो किनारे पर गए, आमिर को देखा, और जो सलमान का तरीका है, ये आमिर आना, ये आमिर आना, आगे आगे. अब आमिर हैड नो ऑप्शन, वो आ गए. फिर उन तीनों ने सवाल पूछे, वो सब आपने देखा होगा. फिर जो सलमान का आइडिया था तौलिया डांस, टावल डांस जो करते हैं, तो आमिर वॉज वेरी रिलक्टेंट टू डू, वो टावल डांस वगैरह नहीं करना चाहते थे, तो उनको भी उसमें घेर लिया. अब वो गाना चल रहा है जोर से और डांस, अच्छा मुझे भी उस टावल के पीछे था, तो आगे सलमान, फिर पीछे सबसे आगे शाहरुख, फिर मैं, फिर आमिर, और सबके पीछे सलमान. और जो चीज पब्लिक को नहीं पता वो मैं आज आपको बताता हूँ. जो उनकी आवाज पब्लिक को तो नहीं सुनाई दे रही थी, तो शाहरुख ने कहा कि यार सलमान, सलमान इसके आगे के स्टेप्स मुझे नहीं आते, तो तू आगे आ जा. कहते आगे आ जाओ, मैंने आमिर का कोट पकड़ा हुआ है, भाग जाएगा नहीं तो. They created so much of fun. वो रात कभी मैं भूल नहीं सकता, कभी नहीं भूल सकता हूँ. एंड इट वाज सो काइंड ऑफ देम, और मैं हमेशा इस बात के लिए, इन तीनों के लिए सामने सिर झुकाता हूँ. उनको अपना दोस्त जब कहता हूँ तो मेरी आंख में आंसू आते हैं. उन्होंने इतना मेरे लिए किया, इतना प्यार दिया. तो इसमें तो काफी काबिले तारीफ आपकी है जो आप सबको ले आए, आप प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को साथ ले आए, ये तो बहुत ही काबिले तारीफ बात है. बिफोर वी नेविगेट द कॉन्वर्सेशन टू मोर सीरियस स्टफ, जैसे कि आपने बताया कि आपकी जर्नी बहुत ही पहले स्ट्रगल्स भी रहे, फिर इंस्पिरेशनल, फिर एडवेंचरस. तो इसमें मैंने जो थोड़ी बहुत रिसर्च, थोड़े बहुत मटेरियल से करी है, there is a big credit that goes to your beautiful wife Ritu ji, and she's also the director of your show. So how did that happen? How did that chemistry strike and the work personal life balance? देखिए, आज जब आप सारे सीक्रेट खुलवाई रही हो तो फिर ठीक है, खोलते हैं. और मैंने आपसे वादा किया था मैं कोई बात छुपाऊंगा नहीं. मैंने रितु जी के लिए भी इनवाइट भेजा था. रितु जी हैज ऑलवेज बिलीव टू बी बिहाइंड द सीन. वो पर्दे के पीछे रहती हैं, कैमरे के पीछे रहना चाहती हैं, और उन्होंने मुझे कैमरे के सामने रखा है. और वाकई में जो मैं था उससे जितना बेहतर बनता गया, ये सारा उनका कंट्रीब्यूशन. शी इज रियली द पर्सन बिहाइंड माई एक्सेलेंस. थोड़ा बहुत जो मुझे आता था मैंने किया. और आपको आश्चर्य होगा जान करके, रितु जी और मेरी मुलाकात आपकी अदालत की वजह से हुई. अगर आपकी अदालत नहीं होता तो रितु जी शायद मेरी जिंदगी में नहीं आती. कपिल देव इंडियन टीम के कैप्टन थे, मेरे दोस्त थे. उनको मैंने आपकी अदालत के बुलाया. दोस्त थे तो ना नहीं कह सके, उनका प्रोग्राम रिकॉर्ड हुआ. फिर उन्होंने मुझे कहा कि यार देख, मैं कप्तान हूँ और हमारे यहाँ थोड़े स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, मैंने कुछ इधर उधर कुछ बोल दिया हो तो क्या ना, रिव्यू द शो बिफोर इट गोज ऑन एयर. तो ऐसे हाँ बिल्कुल आप देख सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है. तो कपिल, एक दिल्ली में ओडियन सिनेमा है, पीछे छोटी सी गली है, उसमें एक छोटा सा स्टूडियो मैंने हायर किया हुआ था. उस समय रिसोर्सेज नहीं थे. उस स्टूडियो में मैं रात में काम करता था क्योंकि रात में वो हाफ चार्ज करते थे. तो रात में 10 बजे कपिल देव अपना प्रोग्राम रिव्यू करने के लिए आए. जब वो आए तो उनके साथ रितु जी थी. ये उनकी कंपनी में काम करती थी. उस समय कपिल देव एक देव फीचर्स नाम से एक टीवी प्रोडक्शन कंपनी चलाते थे, जिसमें वो स्पोर्ट्स के प्रोग्राम प्रोड्यूस करते. तो ही वाज द प्रोड्यूसर डायरेक्टर फॉर देम. वहां उन्होंने मुझे पहली बार इसे इंट्रोड्यूस किया. और फिर कपिल ने मुझे कहा कि यार मैं काम के प्रेशर की वजह से अपनी ये प्रोडक्शन हाउस बंद कर रहा हूँ. अगर तुम्हें आपकी अदालत के कोई अच्छा प्रोड्यूसर डायरेक्टर चाहिए जिसमें बहुत समझ है तो इनसे बात करो. दिस इज हाउ आई स्पोक टू हर. और जब मैंने आपकी अदालत की टीम खड़ी की, जब जी टीवी ने
न्यूज एंड करंट अफेयर डिवीजन शुरू किया तो रितु जी वॉज द फर्स्ट एम्प्लॉय और बहुत साल करीब 17-18 साल हमने साथ काम किया और काम करते करते कब दोस्ती हो गई कब मोहब्बत हो गई क्या नहीं तो फिर and then there's no looking back. Rajat ji, आजकल even in college education, branding is a big subject. You know, there are professors, there are workshops happening on branding. Fiki Flow has most of women entrepreneurs or professionals, and everybody needs some branding. And because today branding is so huge a topic, आप इतना सा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उसमें भी आप पहले ब्रांडिंग पे फोकस करते हैं, प्रोडक्ट पे बाद में करते हैं. In a time like this, Rajat Sharma and India TV are a brand. You are a brand which is unparalleled. Would you like to teach us something about branding to the all young entrepreneurs sitting here? देखिए सिखाऊंगा तो तब ना जब मुझे कुछ मालूम होगा. मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं कोई ब्रांड हूँ, मैं ब्रांड कैसे बनूंगा, उसको कैसे पॉलिश करेंगे, कैसे रिफाइन करेंगे, बिल्कुल नहीं. मेरी बिलीफ ये है कि आप अपने काम पर फोकस करें, ब्रांड अपने आप बन जाएगी. आप मेहनत से, ईमानदारी से जो लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं वो करें, ब्रांड अपने आप बन जाएगी. ब्रांड हम नहीं बनाते, ब्रांड लोग बनाते हैं, पब्लिक बनाती है, जनता बनाती है जो आपको प्यार करती है. तो आप जनता के लिए करिए, लोगों को प्यार दीजिए और वो अपने आप आपको ब्रांड बनाएंगे. Rajat, journalism today has now multiplied broadcast. News consumption and production both have changed over the last decade like massively. There is news from social media, there is news from YouTube channels, there is news from so-called influencer journalists, and then there is authentic news from news channels like India TV. Have you ever felt the pressure to spice up the news? News today reaches us through social media first before we log on to a news channel. देखिए तीन चीजें हैं न्यूज में, आप उनको डिवाइड कर सकते हैं. वन, द ट्रेडिशनल वे विच इज द न्यूज़पेपर्स. दिस इज हाउ वी आर यूज्ड टू गेटिंग आवर न्यूज़ फ्रॉम, आवर मॉर्निंग टी, मॉर्निंग न्यूज़पेपर्स. देन केम टीवी एंड इट चेंज्ड द हैबिट्स. इवनिंग वी वुड वांट, लोग बैठेंगे घरों में, दे विल वॉच टीवी एंड एवरीवन इज व्हाइल दे हैविंग डिनर. आदत बना ली, 8 o'clock, somebody will watch 9 o'clock, somebody will watch at 10 o'clock, and they will watch this will be their daily dose, so that next morning the pressure of reading newspaper is less. Then came this digital media, social media. This is a media which has no control. Newspaper has the biggest control because newspaper, the time to produce news and put it before people, there's a lot of time. शाम को आपके पास खबर आती है, रात में उसके ऊपर काम करते हैं, एडिटर के पास जाती है, कोई बहुत बड़ी खबर होती है तो चीफ एडिटर के पास जाती है, असिस्टेंट एडिटर्स होते हैं, हेडलाइंस चेक करते हैं, कॉपी चेक करते हैं, लॉट ऑफ टाइम. सो दे आर मोर एक्यूरेट. ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में रिफ्लेक्स टाइम इज वेरी लिटिल. Something is happening, a bridge has broken, people are dying, the reporter is on the spot, and whatever he is speaking, you have to put it on. And there are times they make mistakes. There are times people who are in broadcast journalism, because there is pressure to deliver news, they do make mistakes. Over the years, broadcast journalists have learned how to give accurate news even in an emergency situation. In digital media, in social media, nobody thinks. There is no editor. There is no control. That's why when you see something on your WhatsApp, you see a video, you want to know, अच्छा ठीक है कि नहीं? Every day I get hundreds of videos and hundreds of viewers asking me, सर ये जरा चेक करके बता दीजिए ये ठीक है कि नहीं. हमारा काम चेकर का हो गया है. हर वक्त एक टीम है बहुत बड़ी इंडिया टीवी में, बाकी चैनल भी जरूर है. They just sit down and check it. कई बार क्या करते हैं, कोई आदमी थाईलैंड की किसी इवेंट का वीडियो भेज देगा, देखिए सब हमारे फला मांडवी गांव में ये हो रहा है. झूठ निकलती है खबरें. कई बार मॉफ करके वीडियोस भेज देते हैं. इनिशियली
हमारे पास भी ऐसा मैकेनिज्म नहीं था, समझ नहीं पाते थे और व्यूअर भी उसको नहीं समझ पाता था. बट नाउ आई थिंक बाय एंड लार्ज पीपल डोंट ट्रस्ट what you get on the digital media. You don't really trust what you get on your mobile phone or your laptop or your iPad. So the difference is credibility, trust. किसी भी न्यूज के लिए सबसे बड़ी चीज है ट्रस्ट. जो न्यूज हम दिखा रहे हैं, अगर उसको देखने के बाद व्यूअर में सवाल आता है कि पता नहीं ठीक है या नहीं है, तो हमारा काम बेकार है. जब मैं रात को 9 बजे से 10 बजे तक आज की बात का न्यूज शो करता हूं, तो मेरे दिमाग में एक ही चीज रहती है, मेरे से कोई गलती नहीं हो जाए, मैं कोई ऐसी बात नहीं कह दूं. और मैं एक स्टेप आगे जाता हूं कि मैं कैसे लोगों को सरल भाषा, सिंपल लैंग्वेज में लोगों को न्यूज समझा और न्यूज बताने के साथ साथ उसका मतलब, उसका मकसद, उसके पीछे की मंशा, उसके पीछे की कहानी वो लोगों को बता पाऊं. आई थिंक दिस इज व्हाट इज रियली रिक्वायर्ड. What is the future of newspapers? It's almost getting redundant. मैं कितने घरों को जानती हूँ जहाँ न्यूज़पेपर आने बंद हो गए हैं. So where are we heading? जनरेशंस की बात है. देखिए कि ओल्डर जनरेशन दे स्टिल दे लव देयर, उनकी सुबह हो नहीं सकती बगैर न्यूज़पेपर. उसके बाद जो बीच की जनरेशन है वो थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर भी पढ़ लेते हैं, थोड़ा बहुत टीवी भी देख लेते हैं. This younger generation is more onto mobile phone. That's why their information and their understanding is half-baked. They are never sure of what they are reading. They are never sure of what is reaching out. They are always looking toward the elders to ask them, ये ठीक है, ये गलत है. और जो लोग उस डिजिटल मीडिया के न्यूज को बिलीव करते हैं, जो लोग उस डिजिटल मीडिया की न्यूज पर बिलीव करके फैसले लेते हैं, दे हेड फॉर ए डिजास्टर. आज जो इतना क्राइम बढ़ा है, मैं आपको ये रिसेंट जो श्रद्धा के मर्डर का केस है, द एंटायर लर्निंग ऑफ द क्रिमिनल was from web series, was from digital media, total dependence on that. और ऐसे hundreds of cases रोज आते हैं जहां पर लोग डिजिटल मीडिया पर डिपेंड होकर के इस तरह के काम करते हैं. तो ये डेंजरस ट्रेंड है. मुझे लगता है थोड़ा वक्त लगेगा लोगों को और इसको शिफ्ट करने में थोड़ा समझने की जरूरत है. What do you think is your main contribution to journalism? Do you think this India today is in the golden era of its journalism with the varied medias and the transforming ways of journalism? And have you also been mentoring journalists for future? आपको मैं कह सकता हूं कि जितने भी हिंदी न्यूज चैनल्स आज हैं जो पिछले कई साल में आए हैं, उनमें न्यूज रूम्स में आपको वही लोग मिलेंगे जो जब मैं CTV में था तब, या जब मैं इंडिया टीवी में था वहां पर ट्रेन किया. वहां से सीखते हैं, फिर दूसरी जगह जाकर हमारे कॉम्पिटिटर बन जाते हैं. लेकिन मैं हमेशा लोगों को एक ही बात सिखाता हूँ. मैं अपने रिपोर्टर से, प्रोड्यूसर से, एडिटर से हर रोज हर मीटिंग में एक ही बात कहता हूँ, आप वो खबर मत दिखाओ जो मैं देखना चाहता हूँ. जो देख करके आपको लगे कि सर खुश हो जाएंगे, वो मत दिखाओ. वो खबर मत दिखाओ जो आप दिखाना चाहते हैं, जिससे आपको लगेगा हाँ मैंने बड़ा कमाल कर दिया. खबर वो दिखाओ जो देख करके व्यूअर खुश हो जाए. जो दर्शक है उसको जब खबर दिखे उसका लगे हाँ मुझे कुछ अचीव हुआ है, मुझे कुछ मिला है, मुझे कुछ जानकारी मिली है. उसके लिए करो. ये जो टीवी का स्क्रीन दिखाई देता है उसके लिए करो, और किसी चीज के लिए नहीं. फिर वो पूछते हैं कि क्यों. मैं एक ही बात उनको सिखाता हूं, हम सबकी जिंदगी में एक चीज ऐसी है जो बढ़ा नहीं सकते. एक चीज ऐसी है जो हमारे पास लिमिटेड है, वो है हमारा टाइम. हम अपना वक्त नहीं बढ़ा सकते. अगर कोई अपना वक्त हमें दे रहा है, कोई आदमी अपना टाइम देके हमारा टीवी चैनल देख रहा है, तो वो तो हमारे लिए भगवान है. वो अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज हमें दे रहा है.
और हमारी जिम्मेदारी है हम उसका वो क्षण, हम उसका वो पल, उसके वो मिनट, उसका वो घंटा बर्बाद ना हो। ये हम कोशिश करेंगे, तब जाके हम सक्सेसफुल होंगे। Which Indian and international news platforms do you follow, do you admire, and why? मेरे पास तो ऑप्शन नहीं है, मुझे तो इंडिया टीवी फॉलो करना पड़ता है और इंडिया टीवी देखता हूँ। इंटरनेशनली जब मैं कहीं बाहर जाता हूँ तो फिर मैं कोशिश करता हूँ कि सारे जितने नेशनल चैनल्स हैं, इंटरनेशनल चैनल्स हैं, उनको देखें। जब हमने इंडिया टीवी सेटअप किया था तब भी हमने कोशिश की थी, क्योंकि मुझे कोई बहुत न्यूज़ करने का एक्सपीरियंस नहीं था, सिर्फ ये जी न्यूज़ मैंने सेटअप किया था, फिर बाद में इंडिया टीवी शुरू किया। तो मैं और ऋतु जी दोनों हम अमेरिका में CNBC हेडक्वार्टर में उनके यहाँ ट्रेनी बन के नौकरी करते हैं, बगैर ये बताया कि हम कौन है, हमारा इरादा क्या है। तो ऑन अ मिनिमम सैलरी 1 महीना हमने वहाँ काम किया, 3 महीने हमने BSkyE में लंदन में काम किया और उनके सारे गुण सीखे। कहाँ से इक्विपमेंट आता है, कौन सा इक्विपमेंट यूज करते हैं, कौन सा कैमरा यूज करते हैं, लाइब्रेरी कैसी होती है, रिपोर्टिंग कैसी होती है, रिपोर्टिंग के लिए सैटेलाइट का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, OB रैंक क्या होती है, यूनिट्स क्या होते हैं, ये सब हमने वहां से सीखा और फिर उसको हमने इम्प्लीमेंट किया। तो वो जो देखने का वक्त था तो वो चला गया, अब नहीं जरूरत। पर रजत जी, ये तो बहुत इंटेंस वर्किंग करी है आपने। अगर आप कह रहे हैं कि आप डिफरेंट कंट्रीज के हाउसेस में जाके काम भी कर रहे हैं टू अंडरस्टैंड द टेक्निक्स, today's generation is not in the depths, we are more shallow, we are on the surface of the things। हाँ चलिए इंडिया टीवी ये कर रहे हैं, हमको ऐसे करना है, आज तक से ये लेना है, वो करना है, हमने अपना चैनल खोल लिया। This in-depth working, this culture is only not existent anymore and a lot of it goes to technology। हर चीज हमें क्लिक ऑफ द बटन पे मिल जाता है। तो in your words, it is true that इतनी अगर हम solid groundwork करें तो ही सक्सेस मिलती है। सक्सेस तो आपको मिल सकती है बगैर इतना ग्राउंड वर्क किए भी, लेकिन वो टेम्पररी होती है। अगर आपको सस्टेन करना है, आपकी अदालत को 29 ईयर्स हो, इंडिया टीवी को अब 20 साल हो, तो ये सस्टेन करने के लिए और लगातार सक्सेसफुल बने रहने के लिए आपको उस डेप्थ की, उस गहराई की, उस समझ की जरूरत होती है। विदाउट दैट एक्सपीरियंस, विदाउट दैट कमिटमेंट, you cannot sustain it. You can be successful. A lot of people are successful. In cricket, you see the people come like a spark, but if they don't continue to work, फिर वो फेल भी होते हैं। सिनेमा में हम देखते हैं कि चाहे वो डायरेक्टर्स हो, दे आर वन फिल्म वंडर, एक फिल्म करते हैं, बहुत सक्सेसफुल होते हैं, उसके बाद फिर उनको लगता है नहीं हम स्टार हो गए। और मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, आज की जनरेशन में जो यंगस्टर्स मुझे मिलते हैं, they want to become star overnight। मेहनत नहीं करना चाहते, बस रातों रात हम कैसे स्टार बन जाएं, कैसे हम कमाने लगे और उस कमाई को खर्च कैसे करें। आप ये बिल्कुल गलत रास्ते पर जाते हैं जब वो उस कमाई को कमाने के बाद उसको अपने फ्यूचर के लिए सेव नहीं करते। Everyone in life will get a rainy day someday। कभी ना कभी तकलीफ होगी, अपने लिए नहीं कहीं दूसरों से बचाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है जो यंगर जनरेशन के लोगों से जब मिलता हूँ, IITs में जाता हूँ, स्कूल्स के पास जाता हूँ, स्कूल्स में जाता हूँ, मैं सबसे ये कहता हूँ लॉन्ग टर्म प्लेयर। अगर आपको सक्सेस होनी है तो विराट कोहली की तरह, MS धोनी की तरह, ये वन टाइम वंडर बन के कुछ नहीं होगा। यू नीड लॉट ऑफ वर्क, लॉट ऑफ हार्ड वर्क। आफ्टर ऑल सलमान खान और आमिर खान और शाहरुख खान इतनी साल तक सस्टेन कर, इसके पीछे बहुत मेहनत है, बहुत हार्ड वर्क है, बहुत कमिटमेंट है। Overnight success always takes 25 years of hard work। बाहर दिखता है कि ये रातों रात सक्सेस हुई है। आप अपने लाइफ के जो आज हमें दिखता है कि रजत शर्मा जी इज इंडिया's leading journalist, he is the god of interviews। You also must have faced a lot of bottlenecks, a lot of speed breakers। So would you like to tell something about those speed breakers and how you overcame them? आपकी अदालत में तो बॉटलनेक आते हैं, मतलब प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग होती है तो मुझे कोई ऐसा कोई मिल जाए जो जवाब न दे रहा हो, तो वो मेरे लिए बड़ी मुश्किल काम हो जाता है। कि कोई आदमी कटघरे बैठा है, मैंने सवाल पूछा, अब उनके बारे में कह सकता हूँ आज वो दुनिया में नहीं है। मोतीलाल वोरा कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े लीडर थे और वो जिस समय मैंने बुलाया वो उत्तर प्रदेश में गवर्नर थे,
प्रेसिडेंट रूम था वहाँ, वो कटघरे में बैठे। तो मैंने कहा कि पूरा जी सुना है आप राजनीति में तंत्र मंत्र का इस्तेमाल करते हैं। जी नहीं। तो मैंने कहा कि आपने राजभवन को चंद्रा स्वामी का अड्डा बना दिया है। जी नहीं। अब मेरा मन करता पूरा जी कुछ तो बोलो, कैसे प्रोग्राम आगे चलेगा। फिर धीरे धीरे एफर्ट करके उनको शामिल किया, प्रोग्राम हुआ। आपको आश्चर्य होगा कि ऐसी ही बॉटलनेक, ऐसी ही प्रॉब्लम मैंने फेस की थी जब मैंने सलमान खान को आपके साथ। उस समय मेरी इनसे दोस्ती नहीं थी, दुश्मनी थी। तो वो मेरे बारे में कुछ कुछ कहते थे, मैं उनके बारे में कुछ कुछ कहता था। और सलमान के बारे में ये था कि जब ये इंटरव्यू देते हैं, आपने भी देखे होंगे बहुत सारे इंटरव्यू, जब इंटरव्यू पूछ रहा है, मान लीजिए उनका इंटरव्यू कर रहे हो, इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, जवाब दे दिया, नहीं दिया। तो मेरे लिए था अच्छा, आपकी अदालत से प्रोग्राम में सस्टेन क्वेश्चनिंग है, कंटिन्यूअस आंसरिंग, आप ऐसा तो नहीं कर सकते। वो आए अदालत से पहले मेरे ऑफिस में, और उनको शत्रुघ्न सिन्हा लेके आए थे, क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाली दबंग में लॉन्च हो रही थी, और वो चाहते थे कि दबंग से पहले आपकी अदालत का एक शो हो जाए जिसमें सोनाक्षी को भी बुला लें और थोड़ा सा उसको भी बूस्ट मिले, और सलमान की फिल्म हिट हो जाए, सोनाक्षी हिट हो जाए। ये शत्रु जी मेरे बहुत पुराने यूनिवर्सिटी के ज़माने के दोस्त थे, तो मैंने कहा मैं आपके लिए ये जरूर करूँगा। सोनाक्षी आ गई, शत्रु जी आ गए, सलमान साहब आए। सलमान ऐसे जो उनका तरीका होता है और खड़े, तो मैंने कहा बैठे, बैठना क्या है सर। तो मैंने कहा बैठे, नहीं सर। तो मैंने कहा कि आप कुछ डिस्कस करना चाहते हैं प्रोग्राम। नहीं सर। मैंने कहा भाई कोई ऐसी चीज है कि जो आप चाहते हो कि मैं आपसे ना पूछूं। आई जस्ट वॉन्टेड टू ईज आउट, ताकि बातचीत हो। कुछ भी पूछो सर। वो बात ही करने को तैयार नहीं थे। तो मैंने कहा अभी आता हूँ। मैं कमरे से बाहर गया, ऋषि जी को मैंने बाहर बुलाया, तो मैंने उससे कहा मैं तो नहीं इसके साथ प्रोग्राम कर सकता, और इसका कुछ भरोसा नहीं है, वहां प्रोग्राम में मेरे साथ में कुछ झगड़ा करने लगे। तो उन्होंने आइडिया दिया कि ऐसा करते हैं, इस प्रोग्राम में तुम शत्रु जी को जज बना दो। शत्रु जी वो बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, जितने हम रेस्पेक्ट करते हैं वो भी। शत्रु जी तैयार हो गए, तो उन्होंने कहा उनके सामने गड़बड़ नहीं करेगा। तो शत्रु जी जज बन गए। प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग में स्टूडियो में गए, माइक लग गया। अब कटघरे में आप जानते हैं कि बैठ जाते हैं और फिर हम सवाल शुरू करते हैं। तो मैंने कहा कि हम ये शुरू करते हैं। सलमान खड़े हुए कटघरे। मैंने कहा आप बैठिए। बैठना क्या है सर। तो मैंने कहा आप बैठेंगे तो हम शुरू करेंगे। सर हमने बड़ी बड़ी अदालत देखी, हमेशा खड़े ही रहते हैं। अब अगर कोई आदमी, लंबा चौड़ा आदमी कटघरे में खड़ा हो तो शॉट नहीं बनता, कैसे करेंगे। तो मैंने शत्रु जी की तरफ देखा। शत्रु जी ने कहा खामोश, मुल्जिम अपनी कुर्सी पर बैठे। वो बैठ गए और फिर उनके साथ प्रोग्राम शुरू हुआ। ये मेरी जिंदगी का एक इम्तिहान था, बड़ा मुश्किल दिन था। लेकिन जैसे जैसे प्रोग्रेस होती गई, उनको लगा कि मैं कोई हॉस्टाइल नहीं हूँ, मैं उनसे उनके भले की बात पूछ रहा हूँ। और फिर न जाने क्या हुआ, मैंने कैसे पूछा और उन्होंने कैसे जवाब दिए। ही कंप्लीटली वाज इन द स्पेल, और टोटल फोकस करके, कंसंट्रेट करके वो जवाब दे रहे थे। और उससे मैंने उनके ब्लैक बक के केस के बारे में पूछा, डिटेल में बताया। मैंने उनसे उनके मोटर एक्सीडेंट के बारे में पूछा, वो बताया उन्होंने। मैंने उनसे ऐश्वर्या राय के बारे में पूछ लिया, वो बात। फिर कटरीना के बारे में पूछा, सब बात की। फिर अचानक मुझे लगा कि वो बहुत ज्यादा बोल रही है। तो कहा सर बहुत क्लास ले रहे मेरी आप। तो मैंने कहा नहीं, मुझे भी सर। तो मैंने कहा आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं, पूछिए। पूछना क्या है सर। कटघरे से बाहर आ गए, मेरे बराबर आके खड़े हो गए। शायद आप लोगों ने देखा होगा, मैं तो उसके आपको पीछे की कहानी बता रहा हूँ। उन्होंने कहा सर पुशअप हो जाए। तो उन्होंने और मैंने वहां पुशअप किए। उनको लगा था कि मैं 5-7 पुशअप के बाद में गिर जाऊंगा, देन ही विल लाफ एट मी, मेक फन। जब 10, 11, 12, 15, तो सर बड़े तगड़े हो आप, कमाल है। एंड देन ही सेड सर ग्रेट हो,
उसके बाद then we finished the interview. So it really turned out to be one of the best shows I would say that I did, and we really talked about it. So ये bottleneck होते हैं, but शायद ऊपर से कोई भगवान की कृपा होती है, ठीक है. So that's a different kind of a question. There are 4 pillars of democracy: government, bureaucracy, judiciary, and media. The first 2 are always under government control. Is judiciary and media left unbiased anymore? Doesn't look like. See, you can't generalize it. I won't say that every judge is really honest, and I won't say that every journalist is really honest. There are people that are not. And by and large, our public understands. I can talk more about media. Media, as I said initially, is a game of trust. Whether people trust you or they don't trust you. And your viewer knows it. जब आप झूठ बोल रहे होते हैं, जब आप गलत बयानी कर रहे होते हैं, आपका व्यूअर समझ जाता है. टीवी के ऊपर मैं अपने रिपोर्टर से, अपने एंकर से, एडिटर से कहता हूँ, टीवी पर कभी झूठ मत करो, टीवी पर कभी गलत बयानी मत करो, हमारा व्यूअर पकड़ लेता है. हमारी आंख से कैसे पकड़ता है, एनालाइज नहीं कोई कर सकता, लेकिन पता चल जाता है लोगों को. और जो झूठ बोलता है, जो बेईमानी करता है, या जो मैं कहूँगा कि गवर्नमेंट के प्रेशर में आता है, जो किसी पॉलिटिकल पार्टी का या किसी सरकार की मदद करने लगता है, लोग उसको पहचान लेते हैं, फिर लोग उसको उतना प्यार नहीं करते, फिर लोग उसका उतना भरोसा नहीं करते. लेकिन न्यूज़ पे पॉलिटिकल प्रेशर तो रहता है. प्रेशर तो होता है, लेकिन कि आपके ऊपर आप उस प्रेशर को लेते हैं कि नहीं लेते. ये तो नहीं कि हमें लोग नहीं कहेंगे कि आप ये दिखाइए, ये मत दिखाइए. हर पॉलिटिकल पार्टी के लोग, जितने भी सरकार की, जो बीजेपी के लोग हैं, वो हमें कहते हैं कि आप तो बहुत ज्यादा राहुल गांधी को दिखाते हो, उसकी 40 सीटें भी नहीं है, उसको दिखाते हो. ये केजरीवाल है क्या, एक स्टेट में गवर्नमेंट है, इसको आप इतना दिखाते हो, उसकी लाइफ दिखाते हो. और ये लोग कहते हैं, अरे आप तो उनसे डरते हो, हर वक्त मोदी दिखाते हो. बट हम क्या कर सकते हैं, हमको मोदी भी दिखाने हैं, हमको केजरीवाल भी दिखाने हैं, हमको राहुल गांधी भी दिखाने हैं, हमको प्रियंका भी दिखानी है, हमको नड्डा जी भी दिखानी है, अमित शाह भी दिखाना है. सो देयर इज नो ऑप्शन. अब मोदी जी जरूरत से ज्यादा स्पीचेस देते तो हम क्या करें, लोग उनको सुनना चाहते हैं तो हम क्या करें. सी, अगर मनमोहन सिंह स्पीच दें, लोग नहीं सुनना चाहते, मैं उनको कैसे दिखाऊंगा. मोदी जी बोलते हैं, लोग देखना चाहते हैं. हर स्पीच वो बड़ी तैयारी से करते हैं, एक दिन में 4 भाषण देते हैं, चारों के सब्जेक्ट अलग अलग हैं. एवरीथिंग इज क्लासिक, एवरीथिंग इज इंफॉर्मेटिव. पीपल वांट टू वॉच हिम, ही इज रियली पॉपुलर लीडर. वो सड़क पे 50 किलोमीटर की यात्रा निकाल लेते हैं और चारों तरफ लोग खड़े होते हैं, तालियां बजाते हैं, फूल बरसाते हैं. क्यों नहीं दिखाए? तो ये प्रेशर से नहीं होता. प्रेशर होता है पब्लिक का, प्रेशर होता है व्यूअर का. हमारे को ये पता होना चाहिए कि लोग क्या देखना चाहते हैं और उसके हिसाब से हम फैसले करते हैं. मैं इंडिया टीवी की तरफ से आपको दावे से कह सकता हूं, आई डोंट कम अंडर एनी पॉलिटिकल प्रेशर. 40 साल से इस प्रोफेशन में हूं. अब तो लोगों ने प्रेशर डालना भी बंद कर दिया, लोग सोचते हैं कि कोई ऐसा नहीं होता. Yes, sir. With increasing polarization in society and businesses and political influence in media, which we've been discussing, what's the current state and future for India's independent journalism? Journalism has to be independent. It can't be controlled. It can't be dependent. It has to be. Otherwise, journalism है ही नहीं. Free, fair, fearless. ये 3 लफ्ज हैं. इसके अलावा इसीलिए आप देखते हैं कि कुछ न्यूज़पेपर हैं जो बहुत ज्यादा पढ़े जाते हैं और बाकी न्यूज़पेपर कोई नहीं देखता. कुछ टीवी चैनल्स हैं जो ज्यादा देखे जाते हैं. इतने सारे चैनल्स हैं, हिंदी में 200 चैनल्स, लेकिन 2 या 3 टीवी चैनल्स हैं जिनको लोग देखते हैं, बाकी की नई रेटिंग आती है, नहीं देखते. अंग्रेजी में इतने सारे चैनल हैं, 1-2 को लोग देखते हैं, बाकी नहीं देखते. इसलिए क्योंकि वो इंडिपेंडेंट नहीं है. इंडिपेंडेंट है, लोग आपको देखेंगे, आपको रेटिंग मिलेगी, आपको रेवेन्यू मिलेगी, और इन दोनों से आपको रेस्पेक्ट मिलेगी. Sir, we've often seen that any case, trial by media is fast and the accused person is deemed guilty by media first than the court. So can one really have a free and a fair trial? क्या होता है, मीडिया इतना
publicize कर देती है, all groovy details are out there in the media, then how does it not have an impact on the judiciary which actually has to judge the case? मैं आपसे थोड़ा सा डिफर करता हूं। रिसेंटली श्रद्धा के केस में उसको 35 टुकड़े करने वाले आफ्ताब के बारे में अगर मीडिया इतनी जोर शोर से ट्रायल नहीं करता तो शायद पुलिस फिर से उसी तरह की इंक्वायरी करती जैसा मुंबई में की थी जब उस बच्ची ने शिकायत की थी। निर्भया के केस में अगर मीडिया थोड़ा जरूरत से ज्यादा आगे बढ़ के उस केस को नहीं उठाता तो देश में ऐसा आंदोलन खड़ा नहीं होता। लॉज बदलने की जिम्मेदारी भी सरकार नहीं उठाती, कोई कमीशन नहीं अपॉइंट किया गया होता। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें करना पड़ता है। जैसे का लाल का मर्डरर छूट गया था, अदालत ने उसको बरी कर दिया था। अगर मीडिया ने उस केस के लिए शोर नहीं बचाया होता, रीओपन नहीं होता, गवाह खरीदने की बात अदालत को नहीं बताई जाती तो शायद जैसिका लाल को कभी इंसाफ नहीं मिलता। तो कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनमें मीडिया ट्रायल करना ही पड़ता है। मीडिया ट्रायल के बगैर न सरकार जागेगी न जुडिशरी जागेगी। ये हमारा काम है, हमारी जिम्मेदारी है। उसके लोग कहते हैं मीडिया ट्रायल करते हैं, करेंगे, एक बार नहीं 100 बार करेंगे। चाहे उसके लिए हमें सरकार से लड़ना पड़े, उसके लिए हमें जुडिशरी से लड़ना पड़े, उसके लिए किसी भी तरह की मुसीबत उठानी पड़े। आई थिंक ये हमारी जिम्मेदारी है। और सिर्फ क्राइम के केसेस नहीं, मैं आपको 50 उदाहरण दे सकता हूं। बोफोर्स का केस, उस समय इंडियन एक्सप्रेस जैसा अखबार अगर इसको एक्सपोज नहीं करता तो क्या ये इतना बड़ा इशू बनता? उस समय टीवी चैनल्स नहीं थे। तो ये जिम्मेदारी है, ये करना ही चाहिए। ये कोई इसको कोई मीडिया ट्रायल का नाम दे दे तो दे दे। और ये सिर्फ हमारे यहाँ नहीं होता, ये वर्ल्ड ओवर पूरी दुनिया में होता है। पूरी दुनिया में जब न्यूज़पेपर, जब टीवी चैनल्स किसी ऐसे केस को पकड़ते हैं, अमेरिका में भी जिस पुलिस ऑफिसर ने जिस ब्लैक को दबा के मार दिया था, अगर वहां के टीवी चैनल्स उसको इतना बड़ा नहीं बताते, क्या उसको सजा मिल पाती? नहीं मिल पाती। Thank you, Rajat ji. Before I open the floor for my members to ask questions to you, we are a very enlightened group of audience at Wiki Flow Hyderabad, extremely enlightened. Would you have a message for all our entrepreneurs and professionals sitting here? आज के ज़माने में ना आपको बताऊं शुभ्रा जी, किसी को मैसेज देने की जरूरत नहीं पड़ती, सब जानते, सब एनलाइटेंड हैं। जितनी भी बातें मैं बताऊंगा उनमें से आधी से ज्यादा उनको पहले पता होता है। तो इतना एक्सपोजर है आज के ज़माने में, इतना एक्सपोजर है। ये नहीं पहले ज़माने में पहले ज़माने में क्या होता था, कुछ लोग इसलिए एंजाइटेड होते थे कि वो बाहर से पढ़ के आए, या कोई लंदन में 1 महीना घूम के आया तो उसके बाद बहुत इंफॉर्मेशन, कोई न्यूयॉर्क से आया तो बड़ी इंफॉर्मेशन। अब लंदन न्यूयॉर्क सबकी पॉकेट में रहता है। आप मेडिकल में कोई आदमी स्लोन केटरिंग में एक बार हुआ है तो वो जीनियस हो जाता था, मुझे सब पता है। अब स्लोन केटरिंग इज ऑन योर कंप्यूटर ऑल द टाइम, तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, सब जानते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अपना काम, जो भी जिम्मेदारी हमें मिली है, ईमानदारी से करें, मेहनत से करें, और अपने लिए जितना करते हैं वो जरूर करें, लेकिन देश के लिए थोड़ा सोचें। और मैं, आपने चूंकि मौका दिया है तो मैं एक छोटी सी अपील करना चाहता हूँ। आप सब लोग बहुत समर्थ हैं, बहुत अच्छे घरों से आते हैं, अच्छे स्कूलों में, अच्छे कॉलेज में पढ़े लिखे हैं, आपके पास ताकत है, समझदारी है, नॉलेज है। जिंदगी में अगर कभी मौका लगे तो किसी एक बच्चे जो मेरी तरह गरीब था, जिसके पास किताबें नहीं थी, स्कूल नहीं था, जिसके पास यूनिफॉर्म के लिए पैसे नहीं थे, उसको मुझे किसी ने स्कॉलरशिप दी थी, 15 रुपए महीना देते थे। किसी ने मुझे वो दूध के डब्बे का खाना दिया था। आप जिंदगी में किसी एक ऐसे बेसहारा बच्चे को उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले सके तो मुझे लगेगा मेरा यहाँ आना आपसे बात करना सफल है।
वार्तालाप के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और एक बिग राउंड ऑफ अप्लॉज. Now we open the floor for the members to ask the questions. Can a good journalist change the society for good? Could we just sure. आदत नहीं है बैठे रहने की. जी Good पूछिए. evening, Rajat. This is Radha here. I run an electronic industry. I'm just wondering, with the hostile takeovers of the media happening, how do you respond to that? टेक ओवर बाय. Media has been hostile takeovers happening by few of the industrial this thing. You see, it is happening world over. It is not only here. Elon Musk taking over Twitter. So it is happening all over. You call it hostile, you call it whatever. I say takeover is takeover. But it doesn't really make difference. It does not make difference to the media which is credible, which is people know media which is being run by an industrialist. People know media which is being run by a journalist. And people will always trust what is being run by a journalist. Can a good journalist change the society for good? Your question is, can a good journalist change the society? No one can change the society. आप जानते हैं हमारे यहाँ लोग तो कहते हैं हम नहीं सुधरेंगे. सिर्फ जर्नलिस्ट नहीं कुछ कर सकता. अब जर्नलिस्ट तो आपको एक रास्ता दिखा सकता है. जर्नलिस्ट तो जो बेईमान है उसको एक्सपोज कर सकता है. जर्नलिस्ट कैन ओनली टेल यू, लुक, दिस इज रॉन्ग, दिस पर्सन इज करप्ट, दिस पर्सन इज लूटिंग द सोसाइटी. बट beyond that, it is for you, it is for the people, for the public. And I must say, this country, people who live here, they have changed India. They have changed India. Nobody has changed it. No politician, no prime minister, no media, no judiciary. It is people who decide. See, this country deciding every election after election, changing the government, choosing the right people, putting them in positions of power. They have done the change. This is the change. And no other country in the world is doing this. No other country. Look at United States, the kind of people they are electing. And look at India, the kind of people we are electing. Last 10 years, this country has really, really changed. हेलो राजेश जी, दिस इज मानसी हियर. तो आपने तो बहुत लोगों को कटघरे में खड़ा किया है एंड यू आस्क्ड सो मेनी सेलिब्रिटीज सो मेनी क्वेश्चंस. सो अपार्ट फ्रॉम सलमान खान, इज देयर एनी पर्सन दैट यू थिंक हैज आंसर्ड एवरीथिंग जेन्युइनली और आपको एकदम सच बताया है, और एक ऐसा शख्स जिसने सब कुछ बता के बहुत डिप्लोमेटिकली आंसर किया है? देखिए, आपकी अदालत की सक्सेस का राज ही ये है कि इसमें लोग सच बोलते हैं, और जब वो सच नहीं बोलते हैं तो फिर मैं उनसे सच बुलवाता हूँ. और मेरे बुलवाने के बाद भी जो लोग सच नहीं बोलते हैं उनके बारे में मैं पब्लिक को बताता हूँ कि देखिए इन्होंने सच नहीं बोला है. सो कोई भी शख्स ऐसा नहीं कि जिसने सारा सच बोल दिया हो, कोई भी शख्स ऐसा नहीं जिसने सारा छुपा दिया. बहुत सारी बात होती है. मैं आपको एक और राज की बात बता देता हूँ. जब आप पूछ ही रहे हैं तो 29 साल 29 ईयर्स हो गए. आपकी अदालत में जो भी गेस्ट आते हैं, जो भी मेहमान आते हैं, जो भी मेरे एक्यूज जिन्हें कहते हैं वो आते हैं, जब शो खत्म हो जाता है तो मैं उनके पास जाता हूँ, उनसे कहता हूँ कि अगर कोई ऐसी चीज आपने कह दी है जो आप चाहते हैं ऑन एयर ना जाए, आपसे अगर कोई ऐसी बात मुंह से निकल गई है आप नहीं चाहते हैं तो मुझे बता दीजिए, मैं उसको एडिट करूँ. Every program, every show after this I have done this, and there have been occasions when people have said something really, really big, and it would have been sensational, but they asked me to edit it. I edited it. That's why आप पूछ रहे थे ये सारे लोग क्यों आ गए, इसलिए आ गए. ये सब जानते हैं कि मैं हेडलाइन बनाने के लिए शो नहीं कर रहा हूँ. मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आपके मुंह से कोई बात निकल गई, मैंने पकड़ लिया और फिर मैंने उसको बता दिया. नहीं. एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे,
विश्वनाथ प्रताप सिंह। वो आपकी अदालत में आया और ये वो जमाना था, उस समय मंडल कमीशन की बहुत बात थी, जो पुराने लोग जानते हैं, नौजवान सड़कों पे चल रहे थे उसको लेकर। उन्होंने उनसे किसी ने ऑडियंस में से पूछा कि साहब आप कह रहे हैं कि कोटे से आए हुए लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए, कोटे से डॉक्टर आएगा, कोटे से इंजीनियर आएगा, तो मरीज भी मरेंगे, बना हुआ पुल भी टूटेगा। उन्होंने गुस्से में कहा ये आपकी मानसिकता है, ये मेंटलिटी है। आप कैसे कह सकते हैं कि कोटे से आया हुआ डॉक्टर अच्छा नहीं होगा, कोटे से आया हुआ इंजीनियर होगा, आप कैसे कह सकते हैं? तो मैंने कहा कि राजा साहब, उनको हम राजा साहब कहते थे, बीपी सिंह। मैंने कहा राजा साहब, आपके जो डॉक्टर्स हैं जो इलाज कर रहे हैं उनकी लिस्ट मेरे पास है। चतुर्वेदी जी भी है, दुबे जी भी है, सिन्हा साहब भी है, सिंह साहब भी है, उसमें तो कोई कोटे से आया डॉक्टर नहीं है। अब उनका इलाज चल रहा था, he was really suffering and he was a very serious severe kidney patient। उन्होंने हाथ में कुछ कागज थे, उन्होंने फेंक दिए और कहा कि अब आपके सामने कहता हूँ, अब अपना इलाज कराऊंगा तो कोटे के डॉक्टर से कराऊंगा, नहीं तो नहीं कराऊंगा। अब प्रोग्राम के बाद मैंने उनसे कहा कि कोई ऐसी चीज है जो आप चाहते हैं निकाल दो, तो गुस्से में थे, नहीं छोड़िए छोड़िए, चले गए। शाम को उनके वाइफ ने मुझे फोन किया कि पंडित जी आपने इनसे क्या कहलवा लिया? मैंने पूछा क्या हुआ? यानी आप आ सकते हैं? मैं गया उनको मिलने, क्योंकि अपने सारे डॉक्टर्स को फोन कर करके मना कर रहे हैं इनकी तो जान से बच जाए। तो मैंने कहा जी मैं कभी नहीं चाहूँगा इनकी जान से बच जाए, अगर आप चाहती हैं वो हिस्सा टेलीकास्ट ना हो, नहीं होगा। आई डिसाइडेड टू डिलीट इट। और जब तक वो जिंदा थे मैंने इसके बारे में कभी बात भी नहीं की। मेरी जो टीम थी उसने बहुत झगड़ा किया मेरे साथ। इतनी बड़ी स्टोरी उस जमाने में जब मंडल को लेकर पूरे देश में आंदोलन चल रहा था, ऐसा बड़ा एक्सपोजर, ये जाएगा, ये सेंसेशन होगा, आपका इतना नाम हो जाएगा, तो आपको सलाम। मैंने कहा नहीं, मेरे नाम से बड़ा मेरा कमिटमेंट है, मेरे सेंसेशन से बड़ा मेरी सिंसेरिटी, और वो मैंने किया। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको बताऊं, तो ये एक मेजर एग्जांपल है जो मैं आपको बताऊं। आई थिंक दिस इज व्हाट वी लीव इन। Hello Rajat ji, this is Sapna here. Sir, just wanted to ask, in all throughout your journey, where you कभी ऐसा आया जब आपको डर लगा कि मुझे ऐसे सवाल किसी से नहीं पूछना चाहिए था, या did you get any kind of threat calls? थ्रेट कॉल्स थे, थ्रेट कॉल्स तो बहुत ही होते थे। कई लोगों ने तो धमकी दी कि हमें पता है कि आप कहाँ रहते हैं, हमें पता है कि आपकी गाड़ी का नंबर क्या है, दबा देंगे। कौन से? मैं कभी डरा, मैंने कभी परवाह नहीं की। एक कुछ सेकंड्स थे जब मुझे अंदर से तकलीफ हुई थी, डर हुआ था, और फिर मैंने उसको ओवरकम किया। वो तब हुआ जब आपकी अदालत ने एक ऐसे व्यक्ति को इंटरव्यू दिया था जो बहुत बड़े माफिया थे, बहुत उत्तर प्रदेश के बहुत बाहुबली नेता थे, और उनसे मैंने काफ़ी सवाल पूछे थे। उनका बेटा जेल में था, उनके ऊपर बहुत सारे क्रिमिनल केसेस थे। तो शो के बाद उन्होंने धमकी दी थी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, आई कंटिन्यू टू। लेकिन माई डॉटर्स दे वर इन स्कूल, वेरी वेरी स्मॉल, मैं उनको कोशिश करता जब मौका मिले स्कूल जाऊँ पिकअप करने। उस दिन गुलशन कुमार जो टी सीरीज वाले थे, उनकी गोली मार के हत्या कर दी गई। और जब मैं उनको पिकअप करने गया, मैं गाड़ी बैठा तो दोनों मेरे साथ बैठे थे, बोथ ऑफ देम फॉर ऑफ मी, एंड दे सेड पापा कैन यू स्टॉप कमिंग ऑन टीवी? सर व्हाई? सर आजकल जो लोग टीवी पर आते हैं ना, उनको लोग मार रहे हैं। और आपने हमारे स्कूल में बात कर रहे थे कि आपने उस आदमी से ऐसे ऐसे सवाल पूछे थे, वो बहुत बड़ा मर्डरर है पापा। दोज फ्यू मिनट्स वो मैं उनके स्कूल से घर तक जो ट्रैवल किया, वो मेरे लिए बड़ा पेनफुल था। वो एक ऐसा मोमेंट था कि इनको कैसे समझाऊं। बहुत छोटे बच्चे थे, बट देन आई टोल्ड माई सेल्फ नहीं, मैं अपना काम करूंगा, जो होगा सो देखा जाएगा, और वक्त के साथ जैसे ही बड़े होंगे ये भी समझ जाएंगे। अब तो वो समझते हैं इस बात। Namaskar sir, I'm Navina. I wanted to know, we admire you, you are quite an inspiration for this kind of a generation, but I want to know whether you also get inspired or admired the Gen Z or the millennials this day. Admired by? Do you admire someone or do you look up to somebody as an inspiration? दो लोग हैं,
मैं आपसे सीक्रेट शेयर कर लेता हूँ। एक तो मैंने बताया मेरे फादर, ही वॉज ऑलवेज एन इंस्पिरेशन फॉर मी, फॉर माई लाइफ। और दूसरा जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया वो मेरी वाइफ। खुद कैमरे के पीछे रह के किसी दूसरे को बड़ा बनते हुए देखना, बड़ा बनाना और उस पर प्राउड होना, ये कोई छोटा काम नहीं। वो सारे वो काम पर्दे के पीछे रह के करती हैं। वो चाहती तो खुद भी स्टार बन सकती, आज भी। शी इज गुड लुकिंग, शी स्पीक्स वेरी वेल, शी हैज कमांड ओवर लैंग्वेज, क्योंकि मुझे करेक्ट करती है मेरे कैमरा स्टांस को, मेरे वॉक को, जो मैं कपड़े पहनता हूँ। शी डिसाइड्स, मुझे नहीं मालूम ये कहाँ से आते हैं, कब आते हैं। एवरी डे, नॉट वन, एवरी डे। बाहर जाना है, यहां आना है, कैसे आऊंगा, कौन सी फ्लाइट से आऊंगा, कौन सी कहां जाएंगे, कहां रहेंगे। शी इज लुकिंग टू दिस विदाउट इवन लेटिंग मी। मैं क्या बोलूंगा, क्या कहूंगा, अगर उन्होंने यहाँ जो कुछ मैंने बोला ये देखा तो मुझे 4 बात बताएगी, ये तुम्हारी कमी थी, ये तुम्हारे, और अच्छा क्या किया वो कभी नहीं कहेगी। So she is my strength, she is my source of inspiration, and I really think that अगर वो नहीं होती तो मैं इतना कुछ नहीं कर पाता। ये जो excellence है, I can add a testimonial here for Ritu ji. It can go to her through your India TV videographers. That I have been, organizing a lot of sessions at Flow Hyderabad. We are known to be, calling inspirational people who can motivate our members, give something back. But it's the first time that the precision with which his team, of course Ritu ji herself never called me, the precision with which गाड़ी के नंबर से लेके, ड्राइवर से नंबर से लेके, each and every fine detailing was taken care of. Oh my God, मुझे एक बार लगा कि हम मोदी जी का अराइवल कर रहे हैं क्या? नहीं, उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि उन्हें मेरी बहुत चिंता है। सिर्फ ये चिंता नहीं है कि एक पब्लिक प्रोफाइल है, कैसे दिखेंगे, कैसे बोलेंगे, क्या बात करेंगे। वो कहती है कि लोग तुम्हें इतना प्यार करते हैं, अब ये वक्त आया कि तुम्हें वो वापस देना है। दूसरा, सिक्योरिटी को लेकर के उनका हमेशा कंसर्न रहता है। इस प्रोफेशन में होने के वजह से बहुत सारी राइवलरीज होती हैं, दुश्मनियाँ होती हैं, तकलीफ होती है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान वो रखती हैं। और हम असल में हस्बैंड वाइफ कम है, दोस्त ज़्यादा, साथ काम करते हैं। अभी भी लोग कहते हैं आप बोर नहीं हो जाते हैं? हम दफ्तर में सारा दिन साथ रहते हैं, हम बाहर सारा दिन रहते हैं। रेयरली होता है कि हम साथ ट्रैवल नहीं करते। जहाँ उन्हें आना था हैदराबाद भी, और आखिरी मिनट पर उन्हें लगा कि मैं अगर आज सुबह जाके शाम को वापस आ जाऊँ जल्दी से, तो क्योंकि बहुत दिन से उन्होंने मुझे कहा हुआ है कि एक बार हम हैदराबाद चलेंगे, मुझे फलकनुमा में रहना। शी इज अ ग्रेट वन फॉर सी। एक तो टीवी है, पर्सनैलिटी है, टीवी में हमारा प्रोडक्शन सारा वो देखती हैं, लुक एंड फील चैनल का वो देखती हैं, इसके अलावा फाइनेंसेस भी देखती हैं, HR भी देखती हैं। तो सारी जिम्मेदारी, फिर सारी घर की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। लेकिन इस सब के बावजूद हम लोग साथ में ट्रैवल करते हैं, और ट्रैवल इसलिए करते हैं कि उन्हें भी दुनिया देखने का बहुत शौक है। फलकनुमा उनको इसलिए देखना है क्योंकि शी इज़ अ ग्रेट वन फॉर इंटीरियर्स में, एंटीक्स में उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो इन सब चीज़ों के लिए वो हमेशा ट्रैवल करती हैं। बाई चांस है कि नहीं आई, लेकिन वो अगर वहाँ यहाँ आती भी तो प्रोग्राम में नहीं आती। तो एक बार मैंने सब उनके साथ ट्रिक करके उनको प्रोग्राम में किया, जब नहीं आपके अदालत की 21 ईयर्स हम सेलिब्रेट कर रहे थे, तो मोदी जी भी थे, प्रणब मुखर्जी भी थे, और वो हमारे साथ बैठी हुई थी। वो पीछे बैठना चाहती थी, तो मोदी जी ने उनका कहा नहीं बैठिए, आप अपने साथ बैठाया हुआ था। तो जब मैं स्टेज पर गया तो स्टेज पे मोदी जी और प्रणब मुखर्जी मेरे साथ में थे, और ये मुझे कह रहे थे कि मैं कह रहा था कि ये 2 लोग हैं जिनको मैं, एक सबसे अच्छा जवाब देने वाला, एक सबसे नॉलेजेबल को एडमायर करता हूँ, फिर मैंने कहा एक तीसरा इंसान है जिसको मैं एडमायर करता हूँ, मैं बुलाना चाहता हूँ, तो मैंने उनको बुला ली। शी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड।
I called her on stage, and that was only time she had been on stage, but she didn't say a word, but she was there for us. It is very inspirational. From your arrival to Hyderabad, even I have learned that high level of precision is very important in everything. I really liked it, Rajaji, the way her entire team was coordinating with me. So, अरे सर आप बड़े सीधे लोग हैं, हमारे आरोप ज्यादा कहाँ रहते हैं, आप आइए। पूरब से प्रतिष्ठा, पश्चिम से प्रारब्ध, उत्तर से उन्नति, दक्षिण से दायित्व, ईशान से ऐश्वर्य, नेतृत्व से नैतिकता, आग्नेय से आकर्षण, वायव्य से वैभव, आकाश से वृद्धि और पाताल से पूंजी, दसों दिशाओं से सुख, शांति एवं समृद्धि। इंडिया टीवी एंड आपकी अदालत एंड आपके साथ हमेशा रहे। दिस इज व्हाट फ्लो हैदराबाद विशेस फॉर यू। Thank you very much, sir. Would request Vice Chair Aparna Reddy to please deliver the vote of thanks. I would also request the Byflow committee, who I can see in the audience, to please come up for a picture. We missed you in the beginning. Meister Eckhart once said, if the only prayer you ever say in your entire life is thank you, that would be enough. Saying that, I feel honored and privileged to get the opportunity to propose the vote of thanks on this special occasion. Flo would like to thank our honorable guest, Mr. Rajat Sharma, our platinum sponsor Argentum Arts, diamond sponsor Freedom Brand Oil, initiative partners Mishru and Notchabab, creative partner RTC, hospitality partner The Hyatt Place, the media and all the members present here today. Thank you. Please join us for hiking. We also have very high expectations. Just wanted to know going to be 200 very capable women. But thank you, Mr. Sharma. It was a great learning to you, to know you as a human being that we admire, other than being a sensational I was journalist. just honest and No, but other than being a sensational journalist, it was good to see that human side of you as a human being that I admire. Thank you so much, and wish you all the best.